Good morning, students. So we are going to start our another part, and this is the last concluding part of the lesson: bricks, bees, bones, and all through this tour we had found so many things. We had seen how this civilization was developed and how it came into the light, and how it was a tremendous turnout in the Indian history that we are having a contemporary, we can say, development or contemporary civilization as to, we can say, or contemporary with the Mesopotamian time period. And not only that, they are well developed than the Mesopotamian civilization, and they are having all the knowledge about the, we can say, geometry and construction, artifact, and knowledge about the drainage, proper drainage, city planning, and decoration, and having jewelries with a different thing, cultivation. In cultivation also they are using different kind of, we can say, biological things such as we can say fish and this another thing. Maybe they are rearing the fishes or they are rearing the animals. We don't know much about it, but they are having a community mindset because we can see they are having rituals. Devo dharma karma mein vishwas karte. They are having rituals. They are having a big bath tank, and although we are not finding any temple-like things, but we can see they are having a better political administrative system in which we have seen that priest king can be found there. Then we have seen how the digging process was done by the Wheeler and other archaeologist people, and what was the specific knowledge of the archaeological people and their previous job, how they effected this, we can say, excavation, and the Ramji and so many people like John Marshall and other people. They contributed to find this civilization. At last we have seen we are having means archaeologists are having a huge material of pieces and of we can say of the artifacts and other things. But the problem was that in those days and these days are totally different. So how we can interpret it, हम कैसे उसको समझें। इतनी सारी चीजों तो मिली, परंतु उन चीजों को आज की तारीख में रखकर किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये चीजें क्या है, ये क्या किसके लिए इस्तेमाल की जाती थी उन दिनों में। ओके, तो आज हम उन्हीं इंटरप्रिटेशन के लिए, जैसे कल के लेसन में मैंने इसको थोड़ा टच किया था, जो कि पेज नंबर 23 में है, कि कई चीजें देखने में आई कि कोई गॉडेसेस भी है, कोई दिव्य माता है और उनके वेशभूषा उनकी चीजों को दिखता है। इसी प्रकार ऐसे भी कई पत्थर की मूर्ति और चीजें मिली हैं जो प्रिस्ट किंग जो है उनकी और दिखाई देते हैं, उनकी तरफ से वो दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ में है उसके अंदर मैं थोड़ा सा आपके पढ़ के और फिर एक्सप्लेन करूंगी। Attempt have also been made to reconstruct religious beliefs and practices by examining the seals, some of which seems to depict the rituals scenes, and others with the plant motif are brought through to indicate natural worship। अगर हम देखें तो कई जगह पर ये देखने में आया है कि कई जगह पर ये भी देखने में आया कि वहाँ पर पेड़ पौधों के कुछ मोटिव यानी कि चिन्ह अंकित किए गए थे। कई जगह पे कुछ खास सील मतलब छापे पे या मुद्रा पर
क्या है, कई अलग अलग तरीके के चित्रण, जानवर है, कोई विशेष, कोई पेड़ है, कोई पत्तियां या फूल पत्तियों का चिन्ह है, इसी प्रकार के कुछ चीजों का वर्णन है। जैसे वन हॉर्न्ड एनिमल मतलब एक सींगा जानवर। ये एक सींगा जानवर अगर हम देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न डिक्शनरी या सिस्टम में अगर हम देखें तो वो यूनिकॉर्न कहते हैं उससे। वो यूनिकॉर्न एक घोड़े के जैसा जिसके ऊपर एक सींग है, वो दिव्य ताकतों से भरा है या वो देवताओं का घोड़ा है, ऐसे कहा जाता है। तो उस तरीके की जो मिथोलॉजिकल जो चीज है वो दिखाई दी। एक सील में यानी कि एक मुद्रा के अंदर इस प्रकार के मतलब चीज है जिसके व्यक्ति है जो क्रॉस लेग बैठे हुए यानी कि योगी मुद्रा में बैठे हुए और योगी मुद्रा में बैठे हुए और मनन कर रहे हैं और उनके चारों ओर पशु पक्षी हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये प्रोटो जो शिवा है यानी कि शिव जी की पुराने समय का एक काल्पनिक चित्र बनाया गया था, तो वो हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो इसको जिस तरीके से बनाया गया है उसके अंदर देखने से लगता है, क्योंकि शिव जी का एक और नाम है पशुपतिनाथ, तो मे भी ये जो है उनकी ओर दृष्टि देते हैं या दिखाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ पत्थर जो है क्रॉनिकल स्टोन्स देखे गए। ये क्रॉनिकल स्टोन्स को अगर मतलब हिंदू हम कल्चर के अनुसार इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये दिखाते हैं कि ये जो है वो लिंग है और शिव जी का जो पूजा का एक चिन्ह है, लिंग जो है वो उसके रूप में दिखाई देता है। अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट किया। सही में अगर हम देखें तो एक मैकाय है, उन मैकाय ने इन जो कह सकते हैं इसी स्टोन्स को जो क्रॉनिकल स्टोन्स है जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं लिंगास में, और वो लोग इंटरप्रेट कर रहे थे इसको कि ये चौकड़ी के गेम की गोटियां हैं। अगर बाद में आप जब आप देखेंगे पेज नंबर 24 के ऊपर हम देंगे आपको, तब आप देखेंगे कि ये चौपड़ के गेम में यूज करने वाली जैसे राजा महारानी सिपाही ऐसा कोई आइटम्स है तो बड़ा ऊंचा छोटा डेकोरेटिव और किसी में कुछ खास डेकोरेशन ऐसे गोटियां भी हो सकती, पर अभी ये पूर्ण रूप से पुख्ता प्रमाण नहीं है कि क्या चीज है। देन अगर हम देखें तो उसके थर्ड पैराग्राफ में मैनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन रिलीजियंस आर मेड on the assumptions that later tradition provide parallel with the early ones। अगर हम देखें तो कई सारे जो कंस्ट्रक्शन जो है वो बनाए गए और देखे गए उसको कि वो क्या है कैसा है। देन उस समय अगर हम देखें तो आर्कियोलॉजिस्ट को बड़ी मुश्किल हो रही थी कि कैसे अज्यूम करे, कैसे कल्पना लगाए, कैसे अपनी दिमाग को लगाए तो कि पता चल सके कि ये किस चीज के पैरेलल मतलब ये इनकी सोच किस हिसाब से थी और ये इसे किसके साथ जोड़ा जाए ताकि समझ में आए। अगर हम देखें तो बड़ा मुश्किल था किसी भी स्टोन को और किसी भी हम ये कह सकते हैं चीजों को पॉसिबिलिटी के अंदर लाना कि ये रिलीजियस सिंबल है, ये इनका जो है खेलने का चीज है, ये क्या चीज है। अगर हम देखें आज के उसमें आकर और ऋग्वेद और इनके जरिए तो लास्ट पैराग्राफ में जा रहे हैं हम लोग। लेट अस लुक फॉर द इंस्टेंस एट द प्रोटो शिवा seal, the earliest religion text, the Rigved, compiled c. 1500 to 1000 BCE, mentioned the god named Rudra, which is the name used for the Shiva in the later pyramid tradition. Then in the first millennium CE, it sees also we can see in the chapter 4, okay. However, unlike Shiva, Rudra in the Rigveda is neither depicted as the Pashupati, lord of animals in general and cattle in the particular। हम देखें तो जैसे हम लोग कह रहे हैं कि प्रोटो शिवा जी की शिव जी की
एक छवि दिखाई दी है इसमें, इस समय काल में। तो परंतु ऋग्वेद में अगर हम देखें तो उनको एक नाम था रुद्र। तो ये जो रुद्र था, तो उसमें कहीं पर भी रुद्र नाम को पशुपति नाम के साथ नहीं जोड़ा गया। पशुपति नाम उसके बाद में एडिफाइड हुआ। तो हर युग में अपने हिसाब से लोगों ने, या हम कह सकते कल्चर ने, एक देवता का जैसे उनकी श्रद्धा थी, जैसे उनका गॉड के प्रति प्रेम था, जैसा उनकी सोच थी, उसके अंदर उन्होंने उनके नाम को, उनके अस्तित्व को परिवर्तित करते गए। नॉर एज अ योगी अगर हम देखें तो कभी भी ऋग्वेद में उनको योगी के रूप में नहीं देखा गया। Then in the other word, this description does not match the description of Rudra in the ऋग्वेद। अगर हम देखें तो जो शिव जी का प्रोटो शिव जी वाला, हम जैसे पशुपतिनाथ कहते हैं, उनका जो है वो कभी भी ऋग्वेद के साथ मैच नहीं करता। तो वहाँ पर वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही कह सकते रुद्र रूप में दिखाई देते हैं उनके डेवलपमेंट में। तो यहाँ अलग अलग तरीके से सजेशन जो है वो दिए गए। और हम देखें तो ये जो प्रॉब्लम थी ये हर समय इतिहास में आती, क्योंकि हम उस समय वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। जिस जगह के बारे में बात हो रही है, ये जिस सदी की बात हो रही है, हम प्रेजेंट नहीं होते। तो प्रेजेंट नहीं होते तो ऐसी अवस्था में अगर हम देखें तो जो चीज उस समय के अनुसार आती है तो वो भी हो सकती है। कई लोगों ने, कई जो खुदाई आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने प्रोटो शिवाय को रुद्र, या फिर रुद्र जो हम कह रहे हैं, या फिर हम जो पशुपतिनाथ कह रहे हैं, इन सब के अंदर भी अंतर लेके आके एक और नाम दिया, जिसे अगर हम कहें तो शैमेंस कहते हैं। शैमेंस मतलब, अगर लोकल टर्म में राजस्थानी भाषा में बोलूं तो आप समझ सकेंगे शायद कि जैसे अपने राजस्थान में भोपा होते हैं, भोपा होते हैं, तंत्र क्रिया करने वाले होते हैं। वो तंत्र क्रिया करने वालों का बड़ा वो होती है, पकड़ होती है लोगों की जिंदगी में। ग्रामीण इलाकों में कभी किसी को बीमारी हो गई तो झाड़ा फूकी के लिए, तंत्र विद्या के लिए तो भोपाओं के पास जाते हैं अगला पिछला पूछने के लिए। तो ये जो हो सकता है कि शैमेंस होते थे, जो औरत या आदमी जो भी हो, मैजिक करना और तंत्र करना, ये होता था उनके। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ट्राइकोटा यानी कि मिट्टी से बना हुआ एक ऐसा जो चीज मिला, उसको जब वापिस से कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि उसमें जो है एक ऐसा चित्रण है कि बैलगाड़ी का भी है। तो बैलगाड़ी भी रही उस जमाने में। ऐसे जैसे मैंने आपको कहा कि मैकेनिज जो थे, उन्होंने जो शिवलिंग है, उन शिवलिंग को जो जैस्पर से बनी थी, लुजाइल से बनी थी, लपेट से बनी थी, उसको एक चौकोर पत्थरों पे चौकोर एक पत्थर मिला है जिसके अंदर चौकोर खाने हैं। तो चौकोर खाने, आप लोग आजकल लूडो वगैरह खेलते हैं, शतरंज वगैरह खेलते हैं, तो हो सकता था कि उस जमाने में शतरंज के मोहरे रहे हो, या फिर किसी गेम के मोहरे रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पूजा घर में रखी जाने वाले जैसे लिंग हो और उनकी पूजा की जाती है। वी कांट जस्ट कट डाउन, हम एकदम एज मान नहीं सकते, कट नहीं मार सकते कि नहीं यही है या ये यही है, क्योंकि उनके और हमारे बीच में बहुत बड़ा समय अंतराल, गैप है। बट ओके, एनी हाउ जो अंडरलाइन चीज है उनको अगर हम पकड़ते हैं तो हम ये देखते मोहनजोदड़ो एक कंटेम्पररी सिविलाइजेशन था अपने मेसोपोटामिया में। फिर भी मेसोपोटामिया से कई गुना ज्यादा वेल डेवलप्ड सोसाइटी मोहनजोदारो की, या हम कह सकते इंडस रिवर वैली सिस्टम की थी। इसके बाद अगर हम देखें तो आपको जो है दो टाइमलाइन है, टाइमलाइन 1 और टाइमलाइन 2। देखिए, आप बच्चों को प्रॉब्लम हो गया, आप बोलेंगे मैम टाइमलाइन नहीं लर्न होती, बहुत मुश्किल है। बट ये मुश्किल को आसान करना आपके हाथ में है। आपको मैं रटने के लिए नहीं बोलूंगी, मैं ये नहीं कहती कि आप इसको जैसे चैंट आउट करो। बेटर डू वन थिंग, इसको आप एक पेपर पे लिखिए। इसमें जो कोई शॉर्ट फॉर्म या कोई
इंसिडेंट आप ऐड करके लर्न कर सकते वो करिए। और इसको अपने जो जिस जगह पर आप सबसे ज्यादा जाकर खड़े होते हैं, मे बी मिरर है, मे बी टॉयलेट सीट है, मे बी किचन में अगर आप हेल्प करते मदर की, या कहीं पर भी आप उस जगह को स्टिक करिए। चलते फिरते कम से कम दिन में उसको 4 या 5 बार पढ़ने की कोशिश करिए। इट विल बी वेरी इजी टू लर्न लाइक दिस। ओके, आप जब भी उस समय उस जगह से निकल रहे हैं, रुक के 2 मिनट उसको एक बार रीड कर लें। रीड करते ही वो आपके क्या हो जाएगा, जो आपके दिमाग में धीरे धीरे मंदा हो रहा है वो डेट, वो फट से रिवाइव हो जाएगा। और वो क्या होगा, इसी प्रकार से रिवाइव होते होते एकदम आपकी मेमोरी बैंक में स्टक रहेगा। ओके, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू से दिस दैट डू दिस क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन कॉपी, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट है। अगर क्वेश्चन आंसर करके आप लोग 12th कर लेंगे तो ये सबसे बड़ी भूल होगी आपकी, क्योंकि 12th में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जिससे हम ये कह दें कि यही आएगा और वो नहीं आएगा। ओके, पर ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज रही हूँ, आप प्लीज इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें। इनके मैंने पहले ही आपको कहा है, आप नोट्स बनाएंगे। आपके नोट्स की कॉपी में बाद में जब भी गॉड विल्स, जब सब कुछ ठीक होगा तो आई विल चेक इट। और इसके अलावा भी हमें एज 12th क्लास एक प्रोजेक्ट बनाना है एटलीस्ट 35 पेजेस का। तो वो 35 पेजेस में आपको मैं कल और डिस्क्रिप्शन दूंगी कैसे। तो हम अभी इसका पीडीएफ भेज रहे हैं और आप उन सबको देख लें। और जो फाइल की बात है वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी पूरी लेसन सेकंड शुरू करने से पहले, ताकि और कुछ नहीं आप टॉपिक्स ना ले सकें या कुछ, एटलीस्ट आप जब मार्केट खुलेगा तो ब्लैक रंग की जो फाइल है और पेपर्स है वो परचेज करके अपने पास रखे, उसको जैसा डेकोरेट करने की जरूरत है वो करके रख लें। मैटर बाद में भी लिख सकते हैं। ओके, so have a nice day, take care of yourself, please do attend the class. Thank you, bye.